Hi everyone. Thanks for joining my new podcast. We have today very special guest Amit Chandra sir, who has a total 15 year of experience in industry, IT industry and specific to blockchain. अगर मैं blockchain की बात करूँ तो सर को पूरा 8 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. सर ने बहुत सारे डोमेन में काम किया, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर ने काफ़ी मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ में काम किया. तो हमें आज पता चलेगा कि ब्लॉकचेन एक स्केल पे कैसे वर्क करता है, स्केल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करता है. मोस्टली गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए या जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो एग्जैक्टली ब्लॉकचेन को किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं और किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. थैंक यू सो Thank मच you. सर. इट्स बिन ग्रेस. आपका इतना बिजी टाइम, इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम दिया. थैंक यू सो मच. No, it's सो all लेट्स my गेट pleasure स्टार्टेड that विद you have पॉडकास्ट. invited me for this podcast because in today's world, when we are working on so many technologies and emerging technologies which are there in the market, it is very important to share the knowledge because once we share the knowledge with others, then the next generation who are going to come will be more knowledgeable in accepting the new technologies. So, thanks for inviting me for the podcast and hope I will able to add value in the discussion. Of course, sir. Of course, we know you have lot immense, experience in the blockchain sector. So of course, we have a lot of good question for you. And thank you very much, Thank sir, you. for giving us your some Yeah. time. So let's get started with your journey, sir. आपकी जर्नी कैसे थी? आपको मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट See, कैसे है? एंड before yeah, हाउ वाज yeah, योर before जर्नी? I go ahead with the blockchain technology, I will start with my journey because हम्म. I started यस on यस. 2007 when I have joined this IT industry, and I joined in a mainframe हाँ हाँ. technology. Okay, you all know about the mainframe technology. It is ओके. one of the secure in the legacy technology. So I started my journey from there. I have हम्म. worked for Patni Computer System. Then I joined IBM India Private Limited, where I have worked for 8 years. And after that, I got a chance to work on blockchain technology. My journey नाइस. of blockchain technology starts from IBM, where IBM was the few pioneer and who have joined hand with Hyperledger Fabric. So at that time, there were very few people. ट्रू ट्रू. Yeah, there are very few people in the IT industry who are aware of this technology because it has just हम्म. started at that time, and we are few of them who have worked on करेक्ट. this technology. So I got a chance to come to this technology, try to explore this technology, and the best part, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने हाइपरलेजर फैब्रिक 0.5 के साथ स्टार्ट किया था जो उसका इनिशियल वर्जन. 0.5 एकदम इनिशियल वाले. या हाँ तो हाँ. इनिशियल वाले के साथ हमने स्टार्ट किया था. हमने बहुत सारे पीओसीज बनाए थे. आई स्टिल रिमेम्बर one POC which I did on the driver verification part for one of our car rental company client, which was of Oh. IBM. Then the keep on learning because there are a lot of new नाइस things which नाइस. came in blockchain. Started with the Bitcoin. ओके, सो बिटकॉइन की आने की वजह से क्या हुआ कि एक हाँ रिवॉल्यूशन हाँ. आया कि राइट. हाउ सिक्योर द ट्रांजैक्शन विल बी यूजिंग ब्लॉकचेन, एंड देन कम्स द इथेरियम. एंड देन सबने सोचा कि क्यों ना इसको इंटरप्राइज ब्लॉकचेन इंटरप्राइज कम्युनिटी के लिए यूज किया जाए. सो दैट देयर कम्स द हाइपरलेजर फैब्रिक ओपन सोर्स. तो मैंने उस पर काम किया. उसमें बहुत सारे पीओसीज यूज केस बनाए मैंने. 2 years मैंने IBM में काम किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. देन आई मूव ऑन टू वन ऑफ ए जापानीज बेस्ड कंपनी दैट इज एंटिटी डेटा ग्लोबल सर्विसेज. ओके, वेयर आई वर्कड फॉर नाइस. ब्लॉकचेन सीओई टीम, जहाँ पे मैंने कॉडा सीखा. वहाँ पे मैंने फिर अमेजोन क्लाउड सीखा. ओके, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और सीखी वहाँ पे. देन आई जॉइंड हाँ. one of a company, Indian company, and I worked for the Indian client. Then I worked for the German client, European client I worked for, and now I have been working for in the public sector because if I see my career, then there are multiple clients to whom I have हाँ. worked with. I worked with US client, I worked with European client, Australian client, I worked with Indian client, and what I found is that go ahead and work with the public sector. ओके, बिकॉज अगर आप देखो तो ब्लॉकचेन इज इंटायरली अबाउट डेटा. Awesome. ओके, Awesome. कि हम डेटा को किस तरह से सिक्योर करें, डेटा को किस तरह से ट्रांसपेरेंट करें,
ताकि जो नेटवर्क के स्टेक होल्डर हैं उन्हें एक ट्रस्ट बिल्ड हो ट्रू। डेटा के साथ। तो एंड अगर अभी का सिनेरियो देखें या किसी भी कंट्री में देखें तो डेटा सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास होता है, एंड गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा डेटा भी होता है। गवर्नमेंट अपने डेटा को सिक्योर भी करना चाहती है, एंड गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि कैसे उसका डेटा सिटीजन सर्विसेज के लिए बेनिफिट हो। Okay. So considering that currently I've been working for करेक्ट public करेक्ट। sector, and every day I'm getting to know more and more things in blockchain technology. So that's everything from my end. Yeah, that's entirely about my journey. Okay. अमेजिंग सर, अमेजिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, काफ़ी आपने मतलब ऑलमोस्ट आधे दुनिया के साथ में काम कर लिया Yeah. ब्लॉकचेन में, लाइक मोस्ट ऑफ द बिग ग्रैंड्स हु आर डेवलपिंग Yeah. डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में सबके साथ में काम कर लिया। Yeah. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट सर। सो Yeah. Yeah. मैं Thank you. अभी जैसे आपने जो डिस्कस किया, जो भी आपने बताया, उसकी रिलेटेड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये क्वेश्चंस लेने से पहले मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अभी तक आपके 15 साल के जर्नी में आपने कौन कौन से रोल्स को एक्सप्लोर किया? क्या आप प्लीज़ थोड़ा बताना चाहेंगे? जस्ट फ्रॉम द Yeah. बिगनिंग, फ्रॉम ऑफ योर जर्नी, लाइक डेवलपर एंड ऑल सो दोस इन थिंग्स। दिस इंटायर 15 years ऑफ जर्नी में मैंने जो जो रोल परफॉर्म किया है, आई स्टार्टेड एज ए टेक्निकल डेवलपर। ठीक है, मैंने टेक्निकल डेवलपर में काम किया, मेन फ्रेम में काम किया। फिर मैंने टेक लीड रोल परफॉर्म किया। हाँ। मैंने बिजनेस एनालिस्ट का रोल परफॉर्म किया। मैंने फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल परफॉर्म किया। देन आई वर्कड एज अ डिलीवरी मैनेजर, नाइस। and now I am ग्रेट। managing the blockchain team in the public sector. So basically अगर देखा जाए तो मैंने एक आईटी के आईटी सेक्टर में एज अ टेक्निकल जो भी रोल्स होते हैं मैंने परफॉर्म किया। दैट्स व्हाई आई गॉट एन आइडिया whenever I used to discuss with my team. So I got an idea that if they are giving certain kind of estimate to me, if they're stuck somewhere, then I have got that idea because I worked on as a BA developer, as a technical support. So I try to यस। give my input to them. ग्रेट, ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। तो अभी थोड़ा ब्लॉकचेन Yes. के ऊपर बोलते हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन? व्हाट्स योर या थॉट्स या ऑन सो दिस? अगर मैं इंडिया इंडिया में ब्लॉकचेन की बात करूं तो अगर आप देखोगे तो 2018 में जो वेब थ्री डेवलपर्स थे इंडिया में वो थे 3%। ओके, एंड इन 2023 दैट हैज ग्रॉन टू 12%। ओके, तो अगर नाइस। मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेब थ्री इकोसिस्टम ग्लोबली। सो अराउंड 1000 स्टार्टअप्स हैं जो वेब थ्री पे ओके। काम करते हैं। ओके, एंड इन and the statistics, yeah, the ग्रेट। statistics what it shows that in 2023 there are around 250 million has been invested in Web3 space. Okay, so there are a lot of things going on, whether it is public sector related to the cryptocurrency trading platform, any kind of analysis in the trading platform, where it is or other related to the decentralized identity, private sector supply chain project. So बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर हो रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं। So what I see from my point of view हाँ। is that by 2027 the future will be very bright, because one of the goal of Indian government is made in India. Okay, so मेड इन इंडिया के गोल के राइट, मेड इन फोकस इंडिया। में लॉट ऑफ वर्क हो रही है टेक्नोलॉजी स्पेस पे, एंड अमॉन्ग देम ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ एआई है। ओके, वॉइस वॉइस चैट है, बोट है। तो ये सारी चीजें तो आई थिंक आई कैन सी द पॉजिटिव साइड इन द वेव थ्री स्पेस। नाइस, नाइस। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है थ्रू आउट द ब्लॉकचेन जर्नी। मैं भी आई थिंक मेरे को भी अभी 3 साल हो गए ब्लॉकचेन में काम करते हुए। हाँ, मैं एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर वर्क कर रहा हूँ हैंड्स ऑन इन ओके। हाइपरलेजर इंडी स्पेस। सो व्हाट आई ऑब्जर्व, जो अपना पब्लिक ब्लॉकचेन होता है और प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है, वो दोनों का मार्केट बहुत अलग है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और उन दोनों का जो स्पेस है और जो डेवलपर कम्युनिटी है, काफ़ी सेपरेट है। तो आपको क्या लगता है, इसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है आपके या क्या स्पेसिफिक से? रीजन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी या रीज़न फॉर मैं आपको दिस? बताता हूँ स्पेसिफिक रीजन क्या है ना।
जब आप हाँ. पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हो ना, Hmm. तो एट दैट टाइम whenever we design any kind of project we have to make sure कि हमारा जो कस्टमर बेस क्या है। ओके, तो जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते Hmm. हैं तो Hmm. हमारा True. कस्टमर बेस ग्लोबल होना चाहिए। ओके, जिसमें हम ग्लोबली मल्टीपल True. यूजर्स को रीच कर सके, ग्लोबली मल्टीपल यूजर्स उस नेटवर्क का पार्ट बन सके, Hmm. एंड जिसमें अगर मैं बोलूँ तो जिसमें प्राइवेसी प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ यूजर यूजर एक दूसरे को जान सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मार्केट प्लेस की बात करो या आप ई कॉमर्स पोर्टल की बात करो, तो अगर आप उसको लिमिटेड यूजर में रेस्ट्रिक्ट करके रखोगे तो वो बिजनेस चलेगा नहीं। ओके, so it should be the global market and it should Hmm. be on growing. ओके, सो दैट कम्स विद द पब्लिक ब्लॉकचेन। जब आप पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हो तो योर मेन फोकस इज दैट इट शुड बी रीचेबल टू द पब्लिक। ओके, वेयर पब्लिक कैन यूज दैट वन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट ब्लॉकचेन, जब Okay. हम प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो दैट इज अबाउट द Hmm. इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका एक क्लोज्ड नेटवर्क होता है, करेक्ट? जब एक एंटरप्राइज बिजनेस करती है दूसरे Hmm. Hmm. एंटरप्राइज के Correct. साथ, तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करती है और वो चाहती है कि उस नेटवर्क को कोई और थर्ड पार्टी विदाउट देयर परमिशन दे विल नॉट एबल टू जॉइन। इट रिक्वायर्स सम परमिशन, अदरवाइज क्या होगा कि डेटा प्राइवेसी रहेगी True. नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो डेटा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक Hmm. इंटरप्राइज के दूसरे इंटरप्राइज के साथ, और विदाउट एनी परमिशन अगर थर्ड पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो क्या होगा कि देर इज अ लैक, देर विल बी अ डेटा ब्रीच, जहां पे थर्ड पार्टी को भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ओके, so that's where private blockchain comes into picture, when बराबर. the business says that the business should be done within a closed network, जहाँ पे हम एक certain purpose के लिए ही उस नेटवर्क को क्रिएट करें, एंड उस नेटवर्क का जो भी हिस्सा बने Hmm. वो उस नेटवर्क के परमिशन के हिसाब से बने। जबकि पब्लिक ब्लॉकचेन इज फॉर द मार्केट, जहाँ पे हाँ. जहाँ पे जितने पब्लिक आएंगे उतना उस बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो करेंसी। Okay, and other thing is that Hmm. Hmm. this both technology is going to be merged somewhere. Okay, so if I call it merge का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर बराबर. मैंने एक मार्केट प्लेस अच्छा. बनाया जहाँ पे मैं एक डिजिटल Hmm. एसेट को सेल कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं वहां पे एक डिजिटल एसेट को सेल कर रहा हूँ तो Hmm. मुझे Hmm. ग्लोबली रीच आउट करना पब्लिक के पास। लेकिन सेकेंडरी ये है कि अगर मैं उस प्रोडक्ट की हाँ. ट्रेसिबिलिटी को देखना चाहूँ, अगर उस प्रोडक्ट की मैं ट्रेसिबिलिटी को देखना चाहूँ कि वो प्रोडक्ट Hmm. कैसे बना, कहाँ से बना, कितने स्टेक होल्डर्स थे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तब हम प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज करेंगे जो ट्रेसिबिलिटी पे हेल्प करेगा। बट रीचेबिलिटी, पब्लिक रीचेबिलिटी के लिए हम Oh. यू पब्लिक ब्लॉकचेन पे जाएंगे। सो देयर विल बी ए कनेक्शन बिटवीन Hmm. पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इन दिस केस। ओके, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ओके, राइट. राइट. तो मतलब मोटा मोटा आपके डिस्कशन से ये समझ में आ रहा है जहाँ पे मुझे मास अडॉप्शन यस, चाहिए, जहाँ पे मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स पे रीच करना है, वहाँ पे हम पब्लिक ब्लॉकचेन को चूज़ करते हैं, एंड वेयर वी नीड अ ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज दिस वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, उनका एक स्मॉल नेटवर्क बना के जो भी उनको प्राइवेट टास्क परफॉर्म यस, करना है, जो कंट्रोल करना है, गवर्नेंस करना है, उस केस में हम प्राइवेट ब्लॉकचेन, इंटरप्राइज ब्लॉकचेन या प्राइवेट ब्लॉकचेन की करेक्ट, तरफ करेक्ट। जाएंगे, एंड इन दोनों का मिक्स करके एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनता है जो कि मान के चलो गवर्नमेंट और इंटरप्राइज कोलैबोरेशन में एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे फॉर देयर सिटीजन्स, तो इस केस में हमारा हाइब्रिड ब्लॉकचेन या काम में आ सकता है. या करेक्ट, करेक्ट. करेक्ट। इंटरेस्टिंग. क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग. क्लाइंट से बात किया, सो चूजिंग पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट हाँ. ब्लॉकचेन, इट ऑल मैटर कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, अगर कस्टमर बोलती है कि मुझे एक मार्केट सही प्लेस बात. बनाना है तो पब्लिक ब्लॉकचेन। अगर कस्टमर बोलती है कि मुझे एक ट्रेसिबिलिटी हाँ. बनाना है, मुझे ये जानना है कि पर्टिकुलर एक क्लाइंट का प्रोडक्ट कहाँ जा रहा, किसके पास जा रहा है, मेरे को कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, हाँ. देन हाँ. हम प्राइवेट ब्लॉकचेन पे जाएंगे। ओके, सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन कि Yes, yes, रिक्वायरमेंट क्या है. it's हम yes, डायरेक्टली नहीं yes. बोल सकते कि कोई भी यूज No, केस no. के लिए It's completely हाँ depend upon the पब्लिक बना customer दो या requirement. प्राइवेट It's बना दो, no, ऐसा no, नहीं no. It's होता है. हाँ. completely depend upon the business requirement. Okay, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम एक हम्म. सप्लाई चेन पे बात कर रहे हैं और हम वहां पे पब्लिक लगा दें।
पर्पस क्या है, पब्लिक के अलग एडवांटेज होते, हम्म। ट्रू। एडवांटेजेस है, प्राइवेट का अलग एडवांटेजेस है, पब्लिक के अलग डिसएडवांटेज है, प्राइवेट का अलग डिसएडवांटेज है, तो वी हैव टू ड्रॉ द लाइन whenever we deal with a customer or deal with a client, because they don't know that public use करना है कि private use करना. It's about the technical people राइट। or the advisor experts knows about that. हम्म। सो हम स्पेसिफिक सिंगल एक स्टेटमेंट में मुझे समझ में आ रहा है कि हम ये बोल सकते हैं अगर मुझे मार्केट प्लेस बनाना है सो इट्स वर्स्ट आइडिया टू गो Yes, विथ yes, प्राइवेट yes, ब्लॉकचेन क्योंकि उसमें कोई yes, सेंस ही नहीं yes. बनता। राइट। तो उस केस में हम पब्लिक ब्लॉकचेन में जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारे टोकन्स मिलते हैं, क्रिप्टो करेंसी आप लॉन्च कर सकते हैं, वॉलेट एंड सो ऑन सो Correct, फोर्थ। correct. बट प्राइवेट के लिए आपको ट्रेसेबिलिटी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ये सारे प्राइवेट वाले यूज़ कर सकते हैं। Absolutely, absolutely. अमेजिंग। सो हाँ, तो मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो किस टाइप के चल रहे हैं? लाइक अभी मोस्टली सारे स्टार्टअप से क्रिप्टो करेंसी हमें पता है बूम में चल रहा है, तो ऑल वो सब एनएफटी रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं या इसके अलावा जो नॉर्मल यूजर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए उस टाइप के भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? व्हाट्स योर पॉइंट इन दिस? देखिए, इंडिया में जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, एक आपका क्रिप्टो करेंसी जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट. क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस, एनालिसिस इन द सेंस, ऐसे बहुत सारे आपको पोर्टल मिल जाएंगे जो आपको डिपेंड अपॉन द मार्केट का जो डेटा है उसको एनालाइज करके आपको बताएंगे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस प्लेटफॉर्म. ओके। ओके, बिकॉज व्हाट हैपन दैट हम जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो देयर आर टोटल 1500 क्रिप्टो करेंसीज इन द मार्केट. अब उसमें से किसको परचेज करना है, किसको परचेज नहीं करना ट्रू। है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर सर्टन काइंड ऑफ एक्सपर्ट जो डेली मार्केट को स्टडी करते हैं, डेली न्यूज को स्टडी करते हैं, देन दे सजेस्ट कि दिस क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू बी बूम इन द नियर फ्यूचर. ओके, पहला चीज तो ये. दूसरा चीज ये हो जाता है कि जो आपने देखा होगा कि मल्टीपल जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आते हैं. दूसरा आपने ये देखा होगा कि अगर मैं प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करूं तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिटीजन्स की आइडेंटिटी. ओके, सिटीजन्स आइडेंटिटी. अगर मैं अभी ट्रू। देखूं तो मैं अगर कहीं पे भी जाता हूं तो मेरे पास आधार कार्ड होता है और मैं उस आधार कार्ड के बेसिस पे हाँ। मैं बताता हूं कि हु एम आई एज अ बॉडी. करेक्ट. दैट नो वन नोज मी. एनी कोई भी एक गवर्नमेंट पर्सन या कोई भी अगर मैं मोबाइल खरीदने भी जाता हूँ तो कोई मुझे फेस वैल्यू के हिसाब से कोई जानता नहीं है. करेक्ट. दे ओनली नोज दैट आधार कार्ड में जो नंबर है बिकॉज उसमें मेरा बायोमेट्रिक है और उसमें मेरा फिंगरप्रिंट्स है. राइट. लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम फोटोकॉपी के लिए देते हैं तो हम पूरा का पूरा अपना डेटा रिवील करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, सारी चीजें आधार कार्ड में होती है. तो क्या इतनी सारी डिटेल्स रिवील करना इज ए गुड आइडिया? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. ओके. तो अभी क्या ब्लॉकचेन में ये सारी ट्रू। चीजों पे काम चल रहा है जहां पे क्या हो रहा है कि जितना डेटा एक वेंडर को चाहिए हम उतना ही रिवील करेंगे. ओके, नॉट मोर देन दैट. ओके, हम उससे ज्यादा डेटा को रिवील नहीं करेंगे. एंड बिकॉज इससे क्या होगा कि सिटीजन्स का जो आइडेंटिटी है वो सेफ रहेगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ और मूवी की एंट्री मुझे तभी मिलेगी जब मैं 18+ का होऊंगा, तो उसके लिए मैं पूरा डेटा मैं वहां के सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दिखाऊंगा. ओके. मैं उतना ही डेटा दिखाऊंगा कि मैं 18+ हूं कि नहीं हूं. करेक्ट. तो पहले तो ये डिजिटल आइडेंटिटी पे बराबर। बहुत ज़्यादा काम चल रहा है. दूसरा चल रहा है कि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका ट्रेसेबिलिटी पे. ओके. किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेसेबिलिटी पता नहीं चलता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम करूँ जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है और वो एंड यूज़र के पास कंज़्यूम होता है, तो एंड यूज़र को हमेशा एक ये होता है कि वो उसके डेट पे वो डेट देख के पता करता है कि एक्सपायरी है कि नहीं है, या प्रोडक्ट के डिटेल्स सही है कि नहीं है. तो कंपनी उस पे काम करे कि किस तरह से हम सिटीजन्स के फेथ को जीते या सिटीजन्स के ट्रस्ट को जीते यूजिंग टेक्नोलॉजी विच विल प्रोवाइड ए ट्रस्टेड डेटा टू देम. ओके, ये सेकंड चीज हो गया. थर्ड पार्ट हो गया है कि जब मैं हमेशा मैं डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में. डेटा के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि टुडे डेटा इज अ प्रॉपर्टी. ओके, अगर जिसके पास जितना डेटा है वो उतना ट्रू। ज़्यादा कस्टमर होल्ड करके रखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप
कि कोई एक मोबाइल की सिम भी लेते हो तो आपको इमीडिएटली मैसेज आने लग जाते हैं कि आप इसका ये क्रेडिट कार्ड का लोन लीजिए या क्रेडिट कार्ड लीजिए, लोन लीजिए। वेरियस काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के मैसेज आता है। वो आता कैसे है? डेटा जब आपका फ्लोट होता है मार्केट में, True. ओके। तो पब्लिक सेक्टर में भी सिटीजन्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सिटीजन्स का डेटा को सिक्योर करना और सिटीजन्स के सर्विसेज को इजीली सिटीजन्स तक पहुंचाना या अवेल कराना, यही एक मोटिव होता है गवर्नमेंट का। ओके, इसलिए अगर आपने देखा होगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, Okay. कर्नाटका गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, गुजरात, राजस्थान, all these government are working on different type of technology, whether it is AI, voice chat, blockchain, काम कर रही है ताकि डेटा को सिक्योर किया जाए यूजिंग ब्लॉकचेन, एंड डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिटीजन्स के साथ पास पहुंचाया जाए थ्रू एआई सर्विसेज। ओके, so all this technology in near future you will see that all this technology will collaborate hand to hand, and that will be the betterment of the citizen. Okay. नाइस नाइस। सो अमेजिंग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ब्लॉकचेन जो चलती है टेक्नोलॉजी, वो इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी नहीं है, Yes. उसके साथ में हमें एआई और बाकी का अदर टेक्नोलॉजीज को भी यूज़ करना पड़ता है टू मेक इट मोर रोबस्ट एंड मोर करेक्ट करेक्ट, वैल्यूएबल। बिकॉज ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ट्रू। आपको देखना होगा कि एक टेक्नोलॉजी जो होता है वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। हाँ। अगर मैं बोलूं तो ट्रू। ब्लॉकचेन का पर्पस क्या होता है? ब्लॉकचेन का पर्पस होता है इम्यूटेबल डेटा, वो डेटा जो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो डेटा जिसको आप ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो, क्योंकि डेटा आप बराबर। चेंज नहीं कर सकते और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर इन्वॉल्व रहते हैं, तो डेटा आपका ट्रेसेबल भी होता है, इम्यूटेबल डेटा ट्रेसेबिलिटी होता है। और ट्रांसपेरेंट मीन्स क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हाँ। पे काम करता है, तो डेटा ऑटोमेटिकली दूसरे नेटवर्क पे अवेलेबल हो जाता है, तो आप उस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हो, राइट? तो अगर आप देखोगे तो ये टेक्नोलॉजी पूरे डेटा पे काम करती है राइट कि राइट। डेटा को किस तरह से सिक्योर किया जाए और डेटा को कैसे सिक्योरली सिटीजन्स के पास या मल्टीपल बॉडीज के पास रियल टाइम में पहुंचाया जाए। लेकिन उसी डेटा को जब आपका डेटा सिक्योर हो गया, डेटा पहुंच गया, तो अगर आप इस पे एआई लगा दोगे या आईओटी लगा दोगे, तो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन हाँ। या तो एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आप सिटीजन्स को पहुंचा सकोगे या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी किसी भी यूजर्स को पहुंचा सकोगे। ओके। राइट राइट। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। सो मुझे बताइए कि इन योर एक्सपीरियंस डू यू फील कि इस टेक्नोलॉजी को बनाना इज़ लाइक अ चैलेंजेस, या जो भी आप जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन से टेक्निकल चैलेंजेस फेस किए, या अदर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स? व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस वी हैव? देखिए, if I talk about the technical challenges, then for any kind of technology, when you start a project, there are challenges. Okay, there will be challenges, there are challenges. Challenges बहुत different तरीके से होते हैं challenges। एक challenges ये होता है कि आपको अपने stakeholder को समझाना होता है वो टेक्नोलॉजी। ओके, because once they understand, then only, because you are making the product राइट। for your stakeholder, so they should understand कि इसका स्केलेबिलिटी या इसका फ्यूचर अडॉप्शन कैसा होगा। तो पहला चैलेंज तो वहीं आ जाता है जब हम किसी को राइट। भी समझाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट, बिकॉज अगर उनको बेनिफिट समझ में आएगा तभी वो अडॉप्ट होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि अ, आप ट्रू इसको ट्रू। अडॉप्ट कैसे करोगे या व्हाट विल बी द बेनिफिट इन अडॉप्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं तो अभी तक जो चल रहा है, ओके, वो चल रहा है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे, कि सारा डेटा एक जगह पे है और एक जगह से ही सारा डेटा सर्कुलेट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेक होल्डर्स को जिसको भी चाहिए। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप उसको मूव करके डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे लेके आ जाओ। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेरा तो अच्छा खासा चल रहा है, मैं क्यों क्यों लेके आऊं? क्या क्या ऐसा मेरे को मेजर बेनिफिट होगा कि मैं डेटा को पूरा हाँ लेके आ जाऊंगा? दूसरा उनका क्वेश्चन हो जाता है कि अगर मैं डेटा को स्कैटर्ड कर हाँ दूंगा, डिसेंट्रलाइज में लेके आ जाऊंगा, तो मेरा डेटा तो हर कोई देख सकेगा जो भी उस हाँ। ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट। या नेटवर्क में है। तीसरा चीज हो जाता है कि हाँ।
मुझे क्या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और आपका ब्लॉकचेन डेटाबेस दोनों को रखना पड़ेगा, राइट? कि ऐसा मतलब आप मतलब कस्टमर ये क्वेश्चन ओके। पूछती है कि क्या मेरे को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी रखना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी रखना पड़ेगा? अगर मेरे को दोनों रखना पड़ेगा तो मेरे को दोनों की क्या ज़रूरत है? क्या मैं एक नहीं रख सकता? और अगर आप देखते होंगे तो ब्लॉकचेन में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जो सबसे क्रिटिकल डेटा है वो ब्लॉकचेन पे रखो। जो आपके हाँ। किसी भी यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंपनी के लिए या सिटीजन्स के लिए या आपके किसी भी कस्टमर के लिए, उसे रखो। तो ये सारी डिफिकल्टीज आती है, बट दिस काइंड ऑफ राइट। डिफिकल्टीज आर गेटिंग रिजॉल्व विथ मोर एंड मोर ट्रेनिंग सेशंस, more and more POCs which are coming in the हाँ। market, more and more awareness, the more and more use cases जो आ रहे हैं या केस स्टडीज आ रहे हैं जिसपे हम रियल टाइम एग्जांपल बता रहे हैं। सो डिफरेंट पीपल आर वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव। तो एक बार ये अवेयरनेस हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे कि जो जो इसका अडॉप्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ओके। एंड तीसरा चीज ये हो जाता है कि बढ़िया। तीसरा चीज हो जाता है स्केलेबिलिटी का, कि हमें देखना पड़ेगा कि जब हम ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले और मान लीजिए कि मोर एंड हाँ। मोर कस्टमर एक्वायर होंगे, मोर और मोर ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होंगे, तो स्केलेबिलिटी कैसे परफॉर्म होगा, परफॉर्मेंस इसका कैसा रहेगा? मान लीजिए कल की डेट में मेरा मार्केट और ग्रो होगा, तो हम कैसे इसको मोर स्केलेबल बनाएंगे? तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ आती है, बट फॉर अडॉप्टिंग एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ देयर आर डिफ़िकल्टीज़। दैट्स वेयर द चैलेंज कम एंड दैट्स वेयर द लर्निंग कम्स इंटू पिक्चर, कि वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन डूइंग गुड जॉब्स ऑन दैट। ओके। अमेजिंग अमेजिंग सर। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को स्केल करते हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं? लेट्स से प्राइवेट ब्लॉकचेन हो गया या पब्लिक ब्लॉकचेन। देखिए, जब हम किसी भी प्रोडक्ट का इन एग्जांपल्स किसी भी बहुत है। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इशू देखते हैं, ओके, परफॉर्मेंस देखते, फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। किसी भी टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसमें कितने सारे ट्रांज़ैक्शंस होने वाले होंगे हमारे 1 दिन में या 5 मिनट में या 1 मिनट में, नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, ओके। दूसरा बात चीज़ है कि किस-किस टाइप के ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ओके। जब हम ब्लॉकचेन की बात करें तो जो ट्रांज़ैक्शंस का भी बात करेंगे तो हम सारा ट्रांज़ैक्शंस ब्लॉकचेन में नहीं रखते, ओके। जो क्रिटिकल होता है उसी को रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंटली क्या होता है कि हम अपना करेक्ट। डॉक्यूमेंट को एक सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पे रखते हैं एंड उसी डॉक्यूमेंट को वहाँ से हम डेटा पुल करके कस्टमर को देते हैं, करेक्ट? बट इन द केस ऑफ प्राइवेट ब्लॉकचेन अगर हम डॉक्यूमेंट को सेव करने लग राइट। जाएँ तो इट विल बी नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज़ उसका साइज़ ज़्यादा तो हम क्या करते हैं उसका, हम उसका एन्क्रिप्टेड फॉर्म रखते हैं, हैश वैल्यू रखते हैं ब्लॉकचेन पे, राइट? तो तो उससे क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस हैश वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा। आईपीएफएस या कोई भी कुछ कर दे एसएचए ऐसा। 256, एसएचए 512 एन्क्रिप्टेड फॉर्म हम रखते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है परफॉर्मेंस, कि अगर मैं एक नेटवर्क बनाऊँगा तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कितने टाइप नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन हमें कस्टमर से पूछने चाहिए। द अदर क्वेश्चन इज़ दैट स्केलेबिलिटी का अगर देखूँ तो फ्यूचर स्केलेबिलिटी उसका क्या रहेगा? कितने सारे स्टेक होल्डर और उसमें जुड़ेंगे? किस टाइप के स्टेक होल्डर्स जुड़ेंगे? कितने टाइप के चैनल्स बनाने पड़ेंगे? प्राइवेट डेटा हमको बनाने पड़ेंगे। तो ये सारा चीज़ जो हो जाता है एक स्टेक होल्डर, जब हम कोई भी बिज़नेस रिक्वायरमेंट लेते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, उससे पहले एक राउंड टेबल मीटिंग होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, जहाँ पे ये सारे रिक्वायरमेंट गैदर किए जाते हैं एंड देन ओनली स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, टाइप ऑफ ब्लॉकचेन हाँ। क्या चूज़ करना है, वो डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो या ये मच फॉर दिस। सो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया थी। मैंने इसी चैनल पे कंप्लीट एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का एक ओके, सीरीज़ बनाया। इसमें 18 वीडियोस को मैंने डिस्कस किया है, लाइक 18 अलग अलग प्रोजेक्ट आइडियाज़ का। तो उसमें से एक मेरा प्रोजेक्ट आइडिया था कि डिसेंट्रलाइज इलेक्शन मैकेनिज्म यूजिंग हाइपरलेजर और यूजिंग ब्लॉकचेन। तो व्हाट डू यू थिंक? लाइक मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें जनरल ये करता हूँ। मुझे मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये प्रोजेक्ट मैं सोच रहा था इम्प्लीमेंट करने का, तो मुझे बस आपके इसमें इनपुट चाहिए कि ये ऐसा अप्लीकेबल या पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना था कि हम ब्लॉकचेन बनाएंगे। लेट्स से हाइपरलेजर इंडी में यूज़ करूँगा टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एसएसआई मॉडल पे। लेट्स से उसको हम वॉलेट ऐप के थ्रू कर लिया या कुछ एनएफसी हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू कर लिया। दैट इज़ अ वन थिंग। और जैसे ही कोई इंडिविजुअल वैलिडेट होता है
तो हम वो ब्लॉकचेन के थ्रू जो लेजर बनाएंगे ना, उस पे सारे वोटिंग सिस्टम का जो भी डेटा है वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन हमें फिजिबिलिटी देता है, इट्स इम्यूटेबल डेटा। तो ये मेरा एक मैकेनिज्म था यूजिंग हैपलेजर फैब्रिक और हैपलेजर इंडी। व्हाट डू यू थिंक, ये मतलब इंडिया जैसे ह्यूज पॉपुलेशन के लिए या ये पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना दिस टाइप देखिए, ऑफ प्रोजेक्ट्स? जी। मैं अभी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ। एंड मैं ऐसे हाँ हाँ। बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं पब्लिक सेक्टर में लेके जाता हूँ, जो हाँ। दूसरे स्टेट में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि प्रॉब्लम यहाँ नाइस। पे आती है कि वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, कि करेंटली वो किस तरह से हम्म। काम करता है। हम्म। ओके, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो 100% इम्प्लीमेंट होगा किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। हो सकता है कि करेंटली गवर्नमेंट उससे भी अच्छा कुछ कर रही है। ओके, आइडियाज जो होते हैं दैट आर ऑलवेज ट्रू। वेलकम, बट ट्रू। दैट आइडियाज विल शुड बी बेस्ड ऑन द करंट जो उनका सिस्टम है, उसके साथ वो आइडिया अलाइंड होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कोई ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बनाया और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, जब आप वो प्रोजेक्ट आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो उस पे हेलो, एम आई ऑडिबल? या तो आपको पता एग्जैक्टली। चलेगा कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट आपका इंटीग्रिटी नहीं होगा करंट सिस्टम के साथ, करंट उनका जो एप्लीकेशन चल रहा है। क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को या तो प्राइवेट बॉडी को आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि आप अपना पूरा सिस्टम को रिमूव कर दो और मेरा सिस्टम यूज करो। ओके, दे विल नॉट डू। Okay. What they can यस। do, what they राइट। can do is बिग that, चैलेंज हो जाएगा yeah, ये, yeah, हाँ। what they can do is they will integrate your solution to their existing system, जहाँ पे minimum changes लगेंगे। Okay. So when you talk about the voting mechanism, then हम्म। आपको कुछ इस तरह से सोचना है कि करंट वोटिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है और आप कैसे उस वोटिंग मैकेनिज्म का जो आपका सॉल्यूशन है वो विथ मिनिमम चेंजेस आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। हम्म। ओके, रादर देन एक कंप्लीट ठीक है। सॉल्यूशन देना। हम्म। ओके। यस। ओके, तो मतलब हमें अगर कोई चीज़ हम पिच कर रहे हैं स्पेशली टू द एनी गवर्नमेंट बॉडी, तो हमें पूरा एक नया सॉल्यूशन नहीं बनाना है, पहले उनके सिस्टम को यस। समझना है और अपने जो टेक है वो उनके सिस्टम के साथ में किस तरह से मिनिमम चेंजेस या मिनिमम एफर्ट के साथ में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और प्रॉपर एडप्शन भी हो, ये करेक्ट। सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर करेक्ट, दिस। यही एक एक या प्रॉपर या अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस डायरेक्शन में जाना है करके। नहीं नहीं, सी दिस दिस इज नॉट फॉर द पब्लिक अमेजिंग सेक्टर, अमेजिंग। दिस सो इज नॉट फॉर द पब्लिक सेक्टर, दिस इज फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। किसी भी क्लाइंट के पास आप जाते हो या कोई सॉल्यूशन लेके जाते हो, तो you have to make sure that you understand the process, their existing business well, and then you provide them the solution with minimum changes. Yeah. हाँ, बराबर बराबर। तो अभी थोड़ा क्रिप्टो पे बात करते हैं, लाइक इन क्रिप्टो इन इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स है क्रिप्टो पे। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये टैक्स इतना ज़्यादा क्यों है क्रिप्टो में? अगर इसका टैक्स कम हो जाता है सो इज़ इट बेनिफिशियल फॉर इंडिया? See, या इसका मेरे को की रीज़न नहीं समझ में आया कि इतना ज़्यादा टैक्स क्यों दे रहे हैं देखिए, हम टैक क्रिप्टो क्रिप्टो पे। एक अलग टॉपिक है, या अच्छा था। क्रिप्टो एक अलग टॉपिक है। एंड क्रिप्टो जो है, दिस इज नियरली हाँ इन हाँ। द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको कितना टैक्स रखना है। बट व्हाट आई से दैट करंटली अभी ओवरऑल मैंने जैसे बोला 1500 क्रिप्टो करेंसीज है। ओके, एंड क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में एक वर्चुअल डिजिटल एसेट हाँ। की तरह मानते हैं। ओके, वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसका मतलब यू हैव एन एसेट। एंड इंडिया में क्या होता है कि कोई भी राइट। आपका एसेट होता है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। और अभी करंटली जो टैक्स है वो आपका 30% टैक्स है। ओके, अब टैक्स ये नहीं होता कि आपने वो डिजिटल एसेट को अपने पास रखा और आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। टैक्स को जब आप यूज करते हो किसी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर टैक्स को आप यूज करते हो कि किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए,
आप किसी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हो किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो या क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के लिए यूज़ करते हो या क्रिप्टो करेंसी को एज़ अ गिफ्ट यूज़ करते हो, समझे? या तो क्रिप्टो करेंसी को आप एज़ अ सैलरी, इट मीन्स दैट क्रिप्टो करेंसी को आप एज़ अ ट्रेडिंग ओके। ट्रेडिंग के मीडियम में आप यूज़ कर रहे हो। तो इंडिया में क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी को एक हाँ हाँ। वर्चुअल डिजिटल करेंसी माना गया है एंड इंडिया में लॉ है कि अगर आप किसी भी एसेट को जो हम्म। आप ओन करते हो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो टैक्स कम है ज्यादा है क्या है, देन आई एम नॉट द गुड पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। वो या सेकेंडरी बात सेकेंडरी रहती पार्ट है। हाँ हाँ। बट सून यू विल सी सीबीडीसी, यू नो अबाउट सीबीडीसी राइट? सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी जो है वो आ रही है, दैट विल ओवरकम क्रिप्टो यस यस यस, करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल Yeah, that करेंसी। will overcome this cryptocurrency and will be benefit for the citizens and will be controlled again, controlled by Reserve Bank of India. So that will add value. Okay. आरबीआई हाँ। सो जहाँ तक मैं समझता हूँ सीबीडीसी, लाइक सीबीडीसी तो सेटलमेंट के लिए यूज़ होती है एंड इट्स लाइक अ Yes, टोकन, yes. Correct, correct. राइट? सो बट इंडिया में आपको नहीं लगता है कि क्रिप्टो को हम गलत वे में यूज़ करते हैं? क्योंकि जो क्रिप्टो बना था इट्स लाइक अ डिजिटल करेंसी के लिए बना था, बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स उसका एज अ एसेट यूज़ करते हैं। सो आई थिंक दैट या इज़ अ देखिए बिग देखिए, फ्लॉ इन द नहीं क्रिप्टो नहीं, मार्केट देखिए और क्या क्रिप्टो होता है ना, करेंसी। देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर कोई एक चीज बना जैसे ड्रोन, ठीक है? एक ड्रोन एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, करेक्ट? तो हाँ ड्रोन के अगर किसी ने 80% उसके एडवांटेजेस यूज किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके 20% डिसएडवांटेजेस के लिए भी यूज होते हैं। ओके, मैं ये नहीं बोल सकता, वी कांट से कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बन रहा है या हो रहा है तो वो 100% बेटरमेंट के लिए ही यूज होगा, ठीक है? तो वी डोंट हैव द कंट्रोल, राइट? बट हमें ट्रू। ये सोचना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम एडवांटेजेस हमें यूज करना है और जो डिसएडवांटेजेस है उसको हम कैसे रोक सकें। ओके, एंड इसी रोड पे गवर्नमेंट काम कर रही है कि जो भी मिसयूज हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को कि कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए, कैसे सिटीजन्स के पैसे को, जो राइट राइट। सिटीजन्स का पैसा जो मार्केट में रिवॉल्व हो रहा है, मतलब मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है सिक्योर। विदाउट एनी गवर्नेंस, उसको कैसा रोका जाए। सो गवर्नमेंट इज डूइंग गुड जॉब इन दिस कि क्रिप्टो करेंसी को लेके। ओके। ग्रेट ग्रेट, आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली सर, आई एग्री विथ दिस पॉइंट। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से ही बहुत ज़्यादा ब्लैक यस यस। मार्केट में मनी ट्रांजिशन करना या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन करना सिंपल हो गया है। सो लाइक दिस इज़ अ थ्रेट फॉर देखिए ईच एंड देखिए, एवरी गवर्नमेंट। ये सारी आई थिंक चीजें है दैट्स ना, ये इज़ द सारी चीजें बिगेस्ट क्रिप्टो, लिमिटेशन या व्हाट आई ये सारी ऑब्जर्व। चीजें हाँ क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट आई फील इज दैट जो भी पब्लिक सेक्टर में काम होता है वो सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए ही होता है। ओके, वो सिटीजन्स के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के ही किया जाता है, जहाँ पे वो ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी चीज़ का मिसयूज़ ना हो जाए। हो सकता है ट्रू। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, बट नियर फ्यूचर वो सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए ही होगा। हाँ हाँ। ट्रू सर, ट्रू ट्रू। या अमेजिंग अमेजिंग। सो काफ़ी अच्छा लगा थैंक यू। आपसे बात करके सर, मतलब काफ़ी मज़ा आया, मैं तो बोलूँगा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हमें। तो आपका एडवाइस क्या रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए? मोस्टली ऑडियंस है हमारे स्टार्टअप ओनर्स है, लाइक फाउंडर्स है, डेवलपर्स है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए आपका क्या देखिए एडवाइस रहेगा? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। There are a lot of things which are coming in the market, whether it is blockchain, whether it is other technologies. Keep on learning new technologies, keep on learning news, keep on go through the use cases real time, keep on joining webinar, seminar, go through the podcast. All those things will give you an information, and वन थिंग आई विल से दैट नॉलेज जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ओके, नॉलेज हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है डेली लाइफ में। तो आप जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे,
जितना लोगों से बात करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा. And my suggestion will be keep on learning, because that what I do, that what everyone do. Because ये जो आपका टेक्नोलॉजी है ये हमेशा 5 साल में चेंज हो जाता है. तो अगर आप 5 साल में अगर आप पढ़ते रहते हो तो आपको पता चलते रहता है कि भाई इस टेक्नोलॉजी में क्या एडिशनल चीज़ें आ चुकी है जिसको हमें पढ़ना है. तो आप मार्केट के साथ होते हो. ओके, यू आर अपडेटिंग योर स्किल्स टू द मार्केट एंड दैट विल एड वैल्यू टू यू. सो मेरा सजेशन यही रहेगा, कीप ऑन लर्निंग new things, keep on sharing your knowledge to the different people, keep on creating community group that will add value. Also, closing on this, I think we are going to close this podcast, right, Akshay? Right, Yeah. right, right. So as Yes, a yes, closing yes. note, what I will say is that whatever Akshay is doing, he's doing a very good job, because through this podcast, inviting multiple people to this podcast, he's trying to circulate the knowledge to the open network. Okay, जिसको हम बात करते हैं, where multiple other who wants to know that what's going on in the ground level, they will be able to know these things. So my suggestion will be, try to follow the podcast, try to follow the videos which Akshay is sharing along with other videos also. So keeping all this in mind, I will say thank you to Akshay calling me in this podcast and asking me questions. And I hope that I'm able to add value to this podcast. Thank you, Akshay, for calling me or inviting me. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. You know, it's always a glad to meet personality like you. You have a immense knowledge. आपने काफ़ी तगड़ा काम किया हर एक सेक्टर में. And thank you for your time and valuable inputs. So I hope we can meet again if you want with new topics and with exciting new journey. So let's see. Hope for the best, and I would love to have a more podcast like with you. I feel very Yeah, great yeah, to talking with yeah. you. So Whenever you thank you so call, I much, will sir. join and I will share my knowledge. See. Thank you, Akshay. Thank you for calling me. Thank you. Yeah, just one thing, like what is your feedback or advice for me as an individual? No, no, no advice. You're doing a good job. Slowly, you will see that more and more people will able to see the value from this podcast. And what I have also discussed a lot with you. Okay, offline also we have discussed a lot, and I can see that you have that passion of learning new Yes. technology. So try to increase that passion more, and do more Thank and you, sir. more work, and you will see that you will reach the point where you want to be. Okay, and that's all my advice to you, and you're doing a great job. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So bye, take care. Thank you so Thank much, you, sir. bye. Thank you so much. Bye, bye.